sir also constantly. He possesses rich academic as well as rich administrative acumen. So we are proud to have you, Mr. Sir, and hopefully all of us shall benefit from your rich insights. Thank you, sir. Over to you, Dr. Deepak, sir. Thank you. Thank you, Dr. K. Chitara, for giving me the opportunity on this online dash. First of all, I would like to thank uh, Dr. Sangeeta Gupta ma'am and uh, other, Swastha ma'am, the organizing principals, and special thanks to Salen, who is my younger brother, and constantly told me to be in this gathering with these illuminous academicians and researchers and well-known Gandhian economists. Uh, Gandhi is not a kind of a name only. It's a big thinking in itself. गांधी अपने आप में बड़ा विचार है. We often heard that Gandhian values and Gandhian thinking is not relevant, and Gandhian economics is nowhere in this era of consumerism and new economic policies which we are facing and which we are just witnessing all these days. But if we go in depth with all the societal implications, and especially in the era of COVID, which we faced the consequences, whether it is in the health area or its devastating impact on the lives of common man, and what we have faced because of our loss of nature and our disconnect with the nature, that's all compelled us to again reconnect with this nature and what the Gandhian values and the system taught us in the ages. Gandhian values and system are in itself embedded in Indian thinking. It's not kind of new thinking, whether we see the ideas of Mahatma Buddha or Jain or any ideas we can take. But what is most make Gandhian most relevant and most powerful personality of the era is that Gandhi makes this value system practical and how to use this kind of values, whether it is ahimsa or aparigraha or satya, truth, non-violence. How can we make it practically implicable in the political system? It's very important contribution of Gandhi. Gandhi, what I have said, is not only important in context of political ideas, but Gandhi is relevant in all the domains of life, whether it is political, whether it is social, or whether it is, I think it is personal, in personal life also. आज के दिनों में हम एक दूसरे से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, यहाँ पर गांधी का सत्य और अपरिग्रह इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इतना प्रासंगिक हो जाता है समाज को जोड़ने के लिए, प्रकृति से अपने आप को जोड़ने के लिए. मैम, जैसे संगीता गुप्ता मैम कह रही थी, गांधी इकोनॉमी की बात हम करते हैं, जो सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जो रामराज की उनकी संकल्पना है. द कंसेप्ट ऑफ रामराज इज नॉट अबाउट द वर्शिपिंग राम. It's all about how can we make all people benefited from the very basic roots. How can we contribute? How can this economy will contribute in their life? How can their life will be upgraded to higher level? Not in context of economy, but in context of happiness. हम पैसे बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आज जीवन में खुशियां नहीं है. हम अक्सर बातचीत में मजाक में कहते हैं कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे, हमारे जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन हम ज्यादा खुश हुआ करते थे. आज हमारे महीने की तनख्वाह आती है ठीक ठाक, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याओं से हम ग्रस्त रहते हैं, परेशानियों से हम जूझते रहते हैं. तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस. और ये हैप्पीनेस एक आइसोलेटेड कंसेप्ट नहीं है. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ आइसोलेटेड कंसेप्ट.
It's all about the connect with nature, with family, the social structure, the social domain, along with the economic and political structure. The socio-political impacts make its impact, whether it is in positive sense or in negative sense, to all the domains. So जब हम सस्टेन्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जब रामराज की गांधी की रामराज की बात करते हैं, तो गांधी का रामराज्य उस गांव की परिकल्पना करता है जहां पर वो गांव अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए यथासंभव बाहर से न करके अपनी जरूरतें पूरी करता है। चरखा का कंसेप्ट गांधी जी ने जो दिया, वो एक प्रेरणा थी, वो एक प्रतीक था। इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल। हम उसको, बहुत लोग जैसे आलोचना कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मशीनीकृत व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, लेकिन जिस तरह से हमारी जो स्थितियां हैं, जो हमारी जनसंख्या की स्थिति है, हर व्यक्ति को रोजगार और एक समतामूलक व्यवस्था, टू एंश्योर द इगैलिटेरियन सोसाइटी, टू एंश्योर द इकोनॉमी विल रीच equally to each and every person of the society. The concept of Sarvodaya is very much embedded in this notion. So it's not कि हम एक व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचा रहे और एक व्यक्ति एकदम गरीब और हाशिए पे रहे। जहां कई बार हम एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस हम पढ़ते हैं और देखते हैं, महसूस करते हैं कि जहां मार्क्स के विचार ने पूरी दुनिया को हिंसा के बल पे बदलने की कोशिश की, गांधी उन सारी बातों को बड़े ही प्रेम और अहिंसा के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन चीजों को बदलने की बात करते हैं। मैडम ने ट्रस्टीशिप का उदाहरण दिया, इतनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एज ए सिस्टम हम फेल कर गए उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के। वी फेल एज ए सिस्टम, एज ए पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज टू इनकलकेट एंड include all those things in our political system, in our social system, in our day-to-day life. We failed in getting any Lenin to convert the Gandhian values, theories into its practice. जैसा कि लेनिन ने मार्क्सवाद को एक व्यवहारिक धरातल पे लाया, ये अलग विषय है कि वो मार्क्सवाद बाद में फेल किया, लेकिन गांधी के चिंतन के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। हमने गांधी को सिर्फ एक शोध का विषय बना दिया, उनको विचारों का विषय बना दिया, हमने उसको व्यवहार में नहीं उतारा। नीदर गांधीन इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी या जो उनके अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो चिंतन थे, या पॉलिटिकल जो सिस्टम को लेकर के उनके जो आइडियाज थे, एजुकेशन को लेकर के जो उनके आइडियाज थे, या और भी चीजों को, हम कुछ चीजों को ले आए तो हमने पार्ट और पार्शल में लिया, हमने टोटलिटी में चीजों को नहीं लिया, तो शायद कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। शायद यदि हमने उस गांधीयन सिस्टम को अडॉप्ट किया होता तो हो सकता था कि आज हमारी जो इकोनॉमी या जो हमारे देश की स्थिति वो और बेहतर हो सकती थी। गांधी जी श्रम की महत्ता की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द गांधीयन इकोनॉमिकल कंसेप्ट, और उस श्रम की महत्ता में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की अपनी भूमिका, और इसीलिए उस श्रम की महत्ता के कारण यदि सभी को हम उस श्रम के साथ नहीं जोड़ेंगे, उस इकोनॉमिक सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक काउस, एक जो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो इस कारण से सभी को श्रम के मूल्य से परिचित कराते उस व्यवस्था से जोड़ा जाए, उसका इकोनॉमिक सिस्टम में जो कंट्रीब्यूशन वो फील करे, जो उसका कंट्रीब्यूशन हो, जो देश के विकास के लिए उसका कंट्रीब्यूशन हो, वो उसको इस बात के लिए देश के विकास के साथ ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि देश के विकास को और आगे त्वरित गति से आगे बढ़ाने में उसको अन्य अराजक कार्यों से भी रोकेगा। यदि कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको हमें तोड़ने में या उसको हमको नुकसान पहुंचाने में बहुत कष्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सहभागी मूलक व्यवस्था बनाने का प्रयास था। ये एक इफर्ट था कि हाउ दिस सिस्टम कैन बी मेक मोर एंड मोर पार्टिसिपेटरी। तो गांधी का जो सिस्टम, गांधी का जो चिंतन है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। गांधी अपने आप में उसके हर विचार को उठा के देख ले, वो अपने आप में पूरा दर्शन है, पूरा अपने आप में बड़ा चिंतन है, और उस चिंतन को बड़ी हमें गहराई से समझना होगा। We have to go into the very depth of this Gandhian system and Gandhian ideas, Gandhian values, और उसको हम जब तक वास्तविक रूप से
तक हम उसको आत्मावलोकित नहीं करते। आज जिस तरह से हम एक दूसरे को देख करके, या हम एक दूसरे की जो प्रतिस्पर्धा, जो कठोर कंपटीशन की बात ही मैम कर रही थी, निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा है, और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की कीमत पर। गांधी इसकी बात नहीं करते। गांधी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सबको साथ लेकर चलने से जो एक सहभागिता मूलक जो व्यवस्था का विकास होगा, वो इस गला काट प्रतियोगिता का एक स्तर है। हमें किसी का गला नहीं काटना, हमको सबको साथ लेकर चलना, ये गांधी का चिंतन है, ये गांधी का विचार है। और ये गांधी की एक फेमस कोट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ब्रीड। ये कहीं ना कहीं इस गला काट प्रतियोगिता का एक स्तर है कि हम सभी के लिए पर्याप्त है। इस पृथ्वी में बहुत कुछ दिया संग्रह कर ले, और हम और आप सभी कहीं ना कहीं संग्रह के सिद्धांत में लगे हुए हैं। तो ये हम गांधी के सिद्धांत को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गांधी सिद्धांत को जोड़ना चाहते हैं अपने आप से, तो हमें एक प्रयास करना होगा उस अपरिग्रह का, उस सादगी का, उस प्रेम का, उस सद्भाव का, उस सत्य का, उन वैल्यूज का। हम कोई भी एक मूल्य उठा के देख लें, हम वहीं पहुंचेंगे। जैसे ईश्वर के अनेक रास्ते हैं, कोई भी उठा के देख लें, आप वहीं पहुंचेंगे ईश्वर की उस आध्यात्म की तरफ। तो गांधी का कोई भी चिंतन उठा के देख लें, हम वहीं पहुंच जाएंगे। चाहे हम सत्य उठा लें, तब भी वो कहीं ना कहीं जाके वो अपरिग्रह के आसपास आ जाएगा। अपरिग्रह उठा ले, तब भी कहीं ना कहीं हम सत्य के करीब पहुंच जाएंगे। तो इट्स ऑल अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक। ये सारी चीजें हमें समझने के लिए, अपरिग्रह हमारी आवश्यकताएं जितनी है, उन आवश्यकताओं के अनुरूप हम खर्च करें, हम उसी के अनुरूप हम लें समाज से। और जो मैंने कहा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, हमारे पास इतनी संपत्ति है, हम उसके मालिक नहीं है, वी आर द ट्रस्टीज। जैसे बैंक हमारी संपत्तियों को रखता है और जरूरत पड़ने पर देता है, इसी तरह भी उन्होंने कहा कि आज जो एक कॉर्पोरेट सिस्टम की बात की जा रही है कि इनके पास अथाह पैसा, लेकिन वो पैसा इसी समाज का तो है। कहां से वो पैसा आया, कहां से वो वैल्यू क्रिएशन हुआ, कहां से वो मूल्य पैदा हुए। तो गांधी संघर्ष की बजाय जिस बात को मार्क्स के चिंतन में हिंसा और क्रांति के द्वारा बदलाव की बात की जा रही है, गांधी ने बड़े सरल शब्दों में, सहज शब्दों में, प्रेम और अहिंसा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव की बात। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रैक्टिकल रहा। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं रहा, इसको व्यवहारिक तौर पे गांधी ने जीवन में उतार कर दिखाया। चाहे वो आप किसी भी दक्षिण अफ्रीका से लेकर के और मार्टिन लूथर किंग या अन्य देशों में भी जिस तरह से उनके गांधी के विचारों को लेकर के एक पूरी एक आंदोलन और पूरी राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो गांधी का चिंतन था। आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि गांधी जैसा कोई फकीर भी पैदा हुआ था। तो हमें उन विचारों को, उन चीजों को, उन मूल्यों को अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। इट्स वेरी मच रेलिवेंट एंड विल रिमेन रेलिवेंट इन एजेस। इट विल नेवर बिकम इररेलेवेंट। जो पीढ़ियों से, हजारों सालों से चली आ रही मूल्य हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो आज भी जितने कल थी रेलिवेंट, वो आज और शायद आज ज्यादा रेलिवेंट है। जैसा कि मैम ने कहा, संगीता मैम ने, तो आज और ज्यादा रेलिवेंट। आप देखिए चारों तरफ, हमारे पास पड़ोस में तालिबान का उदाहरण उठा के देख लीजिए, अन्य जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज में आप उदाहरण उठा के देख लें, या अन्य जो वैश्विक देशों में जिस तरह के संघर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सभी का उत्तर इस गांधी के विचार, गांधी के मूल्य, गांधी की व्यवस्था में छिपा पड़ा है। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं संगीता गुप्ता मैम का, सीमा श्रीवास्तव मैम का और शैलेंद्र का, कि आपने ऐसे विषय को चुना जिसकी महत्ता बहुत आवश्यक है। जरूरत है इस बात को पहुंचाने की हमारे यूथ के बीच में कि वो गांधी को ज्यादा गहराई से समझे। आलोचना करना हमें कोई, इस देश में आजादी है, हम करें आलोचना, कोई बात नहीं। यदि कोई चीज उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी अच्छाई को भी समझें। समालोचना से चीजें और बेहतर होती हैं।
लेकिन हमें उसको टोटलिटी में, उसकी समग्रता में चीजों को समझना होगा। इसलिए गांधी कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। गांधी हमेशा से जीवन मूल्य में समाहित रहेंगे। गांधी हमेशा से आज आप देखिए राजनीतिक, हम बार बार कहते हैं, एकेडमिशियंस कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि जो वैल्यू इरोजन हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम में हो रहा है, सोशल सिस्टम में हो रहा है, फैमिली सिस्टम में फैमिली वैल्यूज का इरोजन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सब गांधीयन वैल्यूज और गांधीयन सिस्टम को यदि हम अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें फिर से हम रीस्टोर कर पाएंगे। जैसे कि कोविड के कंटेक्स्ट में हमने एक थोड़ा सा ही एक प्रेरणा या हमें जो चेतना में प्राप्त हुई थी, हमें फिर से वी हैव टू गो बैक टू द नेचर, वी हैव टू रिकनेक्ट आवरसेल्व्स विद द नेचर। तो हमें आवश्यकता है फिर से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की। देयर इज अ dire need of introspection in ourselves. We need a introspection to rebuild our society and to make it more peaceful, because peace is a pragmatic need nowadays. So I would like to thank you all for giving me opportunity to be with you all luminaries. I'm thankful to all organizers, all the members who are associated with it, and all the team members. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. That was a very